لگا ہوا ہے، لہٰذا گزارش ہے کہ وہیں پر بیٹھ کر کے انشاءاللہ اجلاس کو دیکھتے رہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ تھے شیخ محترم عطاء الرحمن صاحب جامع حفظہ اللہ و تولیٰ، جو قیامت کی حولناکیوں پر گفتگو فرما رہے تھے۔ قیامت آنا یقینی یہ بالکل طے ہے، یہ ہمارے جو ایمان کے جو ارکان ہے اس کا ایک رکن اور حصہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اصل مسئلہ یہ کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی، یہ طے ہے۔ وما عادت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس کی فکر لے کر کے ہم اور آپ بیٹھے، قیامت اپنے وقت پر آئے گی، اس میں کسی قسم کی نہ کوئی تقدیم اور نہ کوئی تاخیر ہوگی۔ آپ نے فرمایا قیامت کی تو نے تیاری کی۔ اس نے کیا کہا؟ اس صحابہ رسول نے جو کہا وہی ہماری دعوت ہے، وہی ہمارا منہج ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی تو میں نے تیاری کی نہیں ہے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرتا کل قیامت کے دن انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ خطاب کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں شیخ یعقوب صاحب جامع حفظہ اللہ و تولیٰ۔ آپ سے دیرینہ تعلق جو رہا ہے، شورا پور ہو یا صگر ہو یا شاہپور ہو یا دیگر قرب و جوار کا علاقہ ہے، آپ کو ہی سننے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں۔ تو آپ کے بارے میں جو ہے کسی قسم کی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو، ہر جگہ آپ کے بیانات الحمدللہ گردش کرتے رہتے ہیں، سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ شیخ محترم کے خطاب کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ شیخ یعقوب صاحب جامع حفظہ اللہ و تولیٰ، آپ کا جو عنوان ہے حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت، شیخ آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون خبیر۔ رب اشرح لی
صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا، ہم سے پہلے والوں کا، ہمارے بعد آنے والوں کا خالق دو جہاں، مالک ارض و سما ہے۔ هو الرزاق ذو القوۃ المتین ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر ہے۔ وہ اللہ جو اللہ احد الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ وہ اللہ جو وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ اللہ جو مالک یوم الدین ہے۔ وہ اللہ جو رحیم و رؤوف الکریم ہے، حلیم و عظیم ہے، جو ہر زمانے میں بے مثال تھا، بے مثال ہے، ہمیشہ بے مثال رہے گا۔ وہ با کمال ہے، لا زوال ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، بزرگی، اس کی حمد و ثنا، کبریائی، 7 آسمان 7 زمین کی مخلوق، 7 آسمان کے اوپر 7 زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق، فضا میں اڑنے والی مخلوق، سمندر میں تیرنے والی مخلوق، ہر ہمیشہ ہر جگہ اپنے اپنے انداز میں اس اللہ کی حمد و کبریائی بیان کرتے ہیں، جس کا ذکر 15ویں پارے کے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا۔ ان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوق حضرت انسان کو اللہ بنایا۔ یہ انسان کے فائدے کے لیے ساری دنیا کی ملکیت و ملوکیت، زمین کا خلیفہ اللہ نے بنایا۔ اس اللہ کی اتنی عظیم نعمتیں، برکتیں، تحفے، انعام، اکرام ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں۔ اللہ کہتا ہے سورہ کہف میں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ 7 سمندروں کو سیاہی انک، دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا کر اللہ کی حمد، نعمتیں، اس کے احسانات لکھتے بیٹھو۔ خود اللہ بیان کرتا ہے یہ 7 سمندر سیاہی کی شکل میں ختم ہو جائے گی، یہ قلم لکھ لکھ کر گھٹ جائیں گے۔ اللہ کے وہ عظیم انعامات جو ہمارے اوپر ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ اتنا بڑا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اتنی عظیم ذات، اتنی عظیم صفات کا وہ مالک ہے۔ اللہ کے 90 پر 9 بہترین the names good of اللہ، اللہ کے بہترین 99 نام ہیں۔ ان 90 پر 9 ناموں میں ہر نام با کمال، بے مثال ہے۔ ان 90 پر 9 ناموں میں ایک نام کی برابری کرنے والا 7 آسمانوں میں 7 زمینوں میں کوئی نہیں۔ ان 90 پر 9 ناموں میں ایک نام کی برابری کرنے والا، اس کی ایک صفت کی برابری کرنے والا، نہ زمین میں، نہ زما میں، نہ مکی میں، نہ مکہ میں، نہ انسانوں میں، نہ جناتوں میں، نہ پیروں میں، نہ بزرگوں میں، نہ پیغمبروں میں، نہ جناتوں میں، نہ فرشتوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عظیم صفات کا مالک، ہمارے پاؤں کلو کے بھیجے، اس کی ذات کو سمجھنے سے قاصر۔ جو سمجھ میں آتا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بولنا، جو سمجھ میں نہیں آتا واللہ اعلم بالصواب بول کر خاموشی اختیار کرنا۔ حدیث قدسی اللہ کی ذات کو سمجھنے، میں اپنے ہر خطبے میں اللہ کی بے مثال صفات بیان کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اللہ کی قدرت کو سمجھو۔
اللہ کہتا ہے لو اولکم والآخرکم من انسکم و جنکم، اگر دنیا کے تمام انسان و جنات اول سے لے کر آخر تک، آدم سے لے کر قیامت تک، سارے انسانوں سے پہلے کے جنات، قیامت تک آنے والے جنات، سب کے سب متقی پرہیزگار پیغمبروں رسولوں نبیوں جیسے بھی بن جاؤ، میری شان میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں۔ اگر تمام انسان و جنات اول سے لے کر آخر تک سب کے سب کافر، فاسق، فاجر، مجھے گالی دینے والے، میری عبادت سے ٹھکرانے والے، مجھے برا بولنے والے بھی بن جاؤ، میری شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ اگر تم میں کے پہلے کے لے کر آخر تک انسان و جنات سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مانگنا شروع کرو، یا اللہ مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، مجھے خزانہ دے، مجھے سننا دے، مجھے چاندی دے، یہ دنیا بھر کے ہیرے موتیاں دے، یہ دنیا جیسے 100 دنیا کے برابر کا سننا دے۔ اللہ کہتا جتنا تمہاری کھوپڑیاں، تمہارے بھیجے، تمہاری زبان، تمہاری سوچ، تمہاری عقل جتنا مانگ سکتی ہے، ہر انسان، ہر جنات اگر مانگنا شروع کرے، میں ہر ایک کی مرادیں اگر پوری کرتے جاؤں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی پیشی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے کے بعد اس سوئی کے ناکے پر جتنے ایک قطرے سے کم پانی کا جو خطرہ، جو چھینٹا اس پہ لگتا ہے نا، اتنا بھی میرے خزانے میں کمی پیشی نہیں آتی۔ اتنا بڑا مالک الملک، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے ہمارا اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر حمد کریں گے، عبادت کریں گے، اس کی بڑائی کریں گے، اچھے کام کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، برائی کریں گے، اس کے ساتھ اس کا کھا کر اس کے ساتھ غداری کے کام کریں گے، کسی اور کی عبادت کریں گے تو ہمارا برا ہوگا۔ ہم اچھا کریں گے ہمارا اچھا ہوگا، ہم برا کریں گے ہمارا برا ہوگا۔ اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں، اللہ کو کچھ سنورنے والا نہیں۔ سورہ زاریات کی 53ویں آیت میں اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں جناتوں کو عبادت کے غرض سے پیدا کیا، ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، ایسی عبادت کرنا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ ہوئی اللہ کی حمد و ثنا۔ اب آئیے اس کے بعد سارے نبیوں، سارے رسولوں پر درود ہو۔ بارش کے بوندوں سے زیادہ، بارش اور ریگستان کے کنکریوں سے زیادہ، پھول کی پنکھڑیوں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہمارے نبی آخری رحمت للعالمین، جو ساقی کوثر شافی محشر ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید الانس والجن، نبیوں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے انسانوں جناتوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے جانے والے قیامت تک کے نبی برحق خاتم النبیین ہیں۔ اس نبی رحمت للعالمین پر اللہ کی، سارے فرشتوں کی، ہم مؤمنین و مؤمنات کی انگنت درود و سلام ان پر نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 19 سپٹمبر 2022، 19 سپٹمبر 2022 منڈے، بروز پیر، ککیرا جو سرپور تعلقے میں آتا ہے، یہ گلبرگ یادگیر ضلع میں آتا ہے۔ ککیرا کے مسجد اہل حدیث میں جناب بابا خان صاحب کی عمارت میں، صدارت میں، آج ککیرا کے اہل حدیث مسجد میں جو بعد نماز مغرب تا رات تا دیر چلنے والے اس پروگرام میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، ضلع بلہاری، کرناٹک، آپ کے سامنے حلال کی فضیلت و حرام کی مذمت، حلال کمانا کیا ہوتا ہے، حرام کھانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب پشائی کرنے کھڑا ہوں۔ ناظم جلسہ میرے دوست ہیں شیخ عبید اللہ صاحب محمدی حفظہ اللہ، میں نے ان سے وقت مانگا، میرا ٹائم کتنا ہے، کیونکہ 20 منٹ میرے سے پہلے والوں کا تھا،
बोले मैदान भी तुम्हारा, घोड़ा भी तुम्हारा, जब तक थकते नहीं उस वक्त तक घोड़ा दौड़ाते जाओ। मेरे भाइयों, ऐसी बात नहीं है। मेरे बाद और भी जिम्मेदारान हैं जो कीमती बातें आपके सामने रखेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कक्केरा की इस मस्जिद में आज पहला ये बड़ा जलसा होने जा रहा है, माशाअल्लाह। और मुझे ये भी मालूम है बिला मसलक व तफरीक इस मस्जिद में हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बगैर किसी मसलक के तासुबियत के यहां जमा हुए हैं। हमारे सुन्नी भाई भी, तबलीगी भाई भी, अहले हदीस भाई भी, सब एक कलमे पढ़ने वाले, एक नबी का कलमा पढ़ने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले, सब मुसलमान भाई भाई होकर यहां जमा हुए हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला दीन हनीफा, जो दीन हक्का है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिल्लत इब्राहिम हनीफा, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का बताया हुआ सच्चा बरहक दीन है, इसको अच्छी तरह समझकर इस पर चलते हुए, हलाल खाते हुए, हराम से बचते हुए, सुन्नत पर चलते हुए, बिदात से बचते हुए, तौहीद पर अमल करते हुए, शिर्क से अपने आप को बचाते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए इस मस्जिद को आबाद करने की यहां के बाशिंदों को अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जिस नेक जज्बे से हम यहां जमा हुए हैं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हम तमाम मर्दों, खवातीन, बूढ़े बच्चों को ऐसे ही जमा फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों, कुरान मजीद सूरह अल मुमिनून की 51 नंबर आयत की तिलावत मैंने आपके सामने किया। इस आयत में मेरा रब कहता है, या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे रसूलो, कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, पाक रिज़्क़ खाकर नेक अमल करो, बोल रहा अल्लाह ताला। रिज़्क़ पेट में पाक उतारो, आज़ा से अमल अच्छा काम करो, बोल रहा अल्लाह ताला। पाक रिज़्क़ खाकर नेक अमल, ये दो बातें पीछे पीछे एक को एक अल्लाह क्यों बयान किया? रिज़्क़ पाक खाकर नेक अमल करो, एक साथ इन दो बातों को क्यों बयान किया? क्योंकि रिज़्क़ तय्यब, रिज़्क़ हलाल, पाक रिज़्क़ खाने और नेक अमल करने में इन दोनों का बड़ा गहरा राबिता है। जब तक आपके पेट में हलाल लुक़मा नहीं जाएगा, आपका कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करेगा। पेट में हलाल लुक़मा जाना भी अल्लाह की इबादत करने के बराबर है, रब की बंदगी है, अल्लाह की इबादत है। इसीलिए अल्लाह ने कहा, ऐ रसूलो, पाक रिज़्क़, मतलब यह है इस जमीन पर पाक चीजें भी हैं, नापाक चीजें भी हैं। इस जमीन पर हलाल चीजें भी हैं, हराम चीजें भी हैं। इस जमीन पर जन्नत में ले जाने वाले चंद काम, चंद चीजें भी हैं, जहन्नम में ले डूबने वाले चंद काम, चंद चीजें भी हैं। इसीलिए तो अल्लाह आजमाइश के लिए भेजा, अल्लाह आजमाने भेजा। देखें कौन मेरा बंदा हराम से बचते हुए हलाल खाता, कौन मेरा बंदा लाखों के पैसों को ठुकरा कर हलाल के 1 रुपया या 2 रुपये को अपने हाथ में लेता। ये आजमाने के वास्ते ना अल्लाह भेजा। सो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जब तक अपने पेट में हलाल लुक़मा उतारोगे नहीं, आपकी कोई इबादत कबूल होगी नहीं। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, ऐ मेरे उम्मतियों, क़यामत की निशानियों में की एक निशानी ये है, लोग अल्लाह की छोड़कर बंदों की इबादत करना शुरू करेंगे। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह को छोड़कर बंदों की इबादत कोई कैसे करेगा? हाँ, अल्लाह को छोड़ के बंदों की पूजा। सूरह तौबा में मेरा रब कहता, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। इन लोगों ने अल्लाह के अलावा अपने बुजुर्गों को, अपने मुफ्तियों को, अपने पाखंडी आलिमों को रब बना लिया है। अरे अल्लाह के नबी, बात समझ में नहीं आई, कैसे रब बना लेंगे? अल्लाह की छोड़कर बंदों की इबादत लोग कैसे करेंगे? तो नबी ने कहा, लोग, इनके मुफ्तियां हलाल को हराम में फतवा देंगे, हराम को हलाल में फतवा देंगे। जिसे मेरे अल्लाह ने कुरान और हदीस में हलाल किया है, पैसे खा खा कर उसे हराम कह देंगे। जिसे मेरे अल्लाह ने कुरान और हदीस में हराम कह दिया है,
اسے پیسے کھا کھا کر حلال میں فتوا دیں گے. لوگ اللہ کی حلال کو حلال نہیں سمجھیں گے بلکہ مفتیوں کے حلال کو حلال سمجھیں گے. لوگ اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھیں گے بلکہ مفتی جسے حرام کہیں گے اسے حرام سمجھیں گے. گویا ان لوگوں نے اپنے عالموں کے حلال حرام کو، اپنے مفتیوں کے حلال حرام کو حلال حرام سمجھ لیا، جبکہ اس چیز کو اللہ نے حلال کیا. ان کا مفتی بول رہا حرام، اللہ کی حلال کو حلال نہیں سمجھ رہے، مفتی غلط ہو گیا حرام. اللہ جسے حرام کر دیا اسے حرام نہیں سمجھ رہے، ان کا مفتی بول رہا حلال سو حلال. گویا یہ اللہ کی چھوڑ کر بندوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے. کسی انسان کے حلال کو حلال سمجھنا، کسی عالم کے حرام کو حرام سمجھنا، اللہ کی چھوڑ کر اس عالم کی پوجا کرنے کے برابر ہو جائے گی. یہ حدیث بخاری مسلم کی. اسی لیے کوئی بھی چیز اسلامی شریعت میں حلت و حرمت سمجھنا ہے. علماء برحق زندہ ہیں الحمدللہ، ابھی دین باقی ہے. دین اسلام کو اللہ حق پرست علماء کو موت دے کر اس دنیا سے علم کا خاتمہ کر دے گا. ابھی وہ وقت نہیں آیا. علماء ربانی، اللہ کے نیک بندے، حق جاننے والے علماء ابھی بھی زندہ ہیں. آپ ان سے رابطہ کیجئے. اللہ قرآن میں کہتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم نہ معلوم نہیں ہے سو مسئلے عالماں کو پوچھ کو معلوم کر لو. مولوی صاحب یہ چیز حلال کیا حرام، یہ چیز میں کھانا کیا نہیں کھانا، یہ بزنس میں کرنا کیا نہیں کرنا، یہ چیز میں ملوث ہونا کیا نہیں ہونا، عالماں سے پوچھو. ایک نہیں کئی عالماں سے پوچھو، محقق علماء سے پوچھو، بڑے بڑے مدنی دکتور علماء موجود ہیں، ان سے دریافت کرو. اگر وہ قرآن کی آیتیں حدیث رسول کے حوالے سے آپ کو واضح کر دیں بھائی یہ حلال ہے اس میں پڑھو، بھائی یہ حرام ہے اس سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں الحلال بین والحرام بین. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. وَأُمُورٌ بَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ. ان دونوں کے درمیان چند شبہ میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، شک میں ڈالنے والی چیز. بکرا سب جنگ معلوم حلال کا، تو خنزیر گدھا کتا سب کو معلوم یہ حرام کا. تو اب جنگل سے ایک ایسا جانور آتا تمہارے سامنے، زندگی میں کبھی دیکھے رہتے نہیں وہ جانور کو. اب دیکھنے گدھا دکھے سکا دکھ رہا، دیکھنے گھوڑا دکھے سکا دکھ رہا، ادھر گدھا بھی نہیں ادھر گھوڑا بھی نہیں. کیا کرنا؟ ہرن دکھے سر کا بھی دکھ رہا، چھیلی دکھے سر کا بھی دکھ رہا. کیا کرنا؟ حلال کی حرام کی معلوم نہیں، کب کبھی دیکھے نہیں، یہ جانور کا نام معلوم نہیں، یہ حلال کی حرام کی کیوں کرنا؟ شک میں پڑ گئے آپ لوگ، ڈاؤٹ میں پڑ گئے آپ لوگ. حلال بزنس کرنے والا ترکاری مارکیٹ میں ترکاری بیچ رہا، فٹ پاتھ پہ چپلاں بیچ رہا، یا نہیں تو ہارڈ ویئر دکان ہے، پینٹ کی دکان ہے، کرانی دکان، حلال بزنس دعوت دے رہا، جا کر آرام سے کھا لو. اور ایک آدمی ہے بینک میں نوکری کرنے والا، شراب خانہ اوپن کر لے بیٹھیا، تمہارے گھر میں بریانی کی دعوت دیتا. صاف سیدھا ظاہر ہے بھئی بینک کی نوکری، یہ شراب کے پیسے یہ حلال نہیں، بھئی اس کے دعوت میں نہیں جانا، اس کے دعوت میں جانا. اور ایک آدمی ہے بیچ میں، انہیں کبھی ایسے ویسے حرام کے رشوتاں بھی کھا لیتا، حلال کا کام بھی کرتا. اب کیا دعوت کھانا نہیں کھانا؟ ڈاؤٹ میں آ گئے آپ لوگ، ڈاؤٹ میں آ گئے. شربت، آم کا جوس، سنترے کا جوس، نارنگی کا، موسمبی کا جوس حلال دبا کو پی لینا. وچ شراب کنگ فشر نام کی کوئی برانڈی بیئر سیندی شراب تمہارے سامنے آ گئی، حرام نہیں پینا. ادھر سنترے کا جوس ہے، سیب کا جوس ہے، حلال ہے، ادھر کنگ فشر شراب ہے، حرام ہے. ایک نیا جوس تمہارے سامنے آ گیا، دیکھنے شربت دکھے سر کا دکھ رہا، اس میں باس شراب کی آئے سر کا آ رہی. اب کیا پینا کیا نہیں پینا؟ ڈاؤٹ میں آ گئے آپ لوگ. کیا کرنا؟ آج کل جوس کے دکانوں میں وہ بیئر نام کا ایک شربت آ گیا، بیئر، اس میں نشہ نہیں مول صاحب، پی سکتی. آپ ڈاؤٹ میں آ گئے. اللہ بولتا وہ امور بینہما مشتبہات. چند ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ڈاؤٹ میں مبتلا کر دے.
अगर आपका दिल शक में मुब्तला हो रहा, डाउट में मुब्तला हो रहा, तो अल्लाह बोलता उन डाउट वाली चीजों से भी अपने आप को बचाओ, डाउट वाली चीजों में नको पड़ो। अगर डाउट वाली चीजों में पड़ोगे तुम्हारा ईमान बर्बाद कर लोगे, डाउट वाली चीजों से अपने आप को बचाओगे, तुम भी सेफ्टी रहोगे, तुम्हारा ईमान भी सेफ्टी कर लोगे। डाउट वाली चीजों से भी बच को दूर रहना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला इस कायनात के अंदर जितनी भी चीजें बनाया, इसमें बहुत सारी तिजारतें हलाल के हैं, बहुत सारी तिजारतें हराम की हैं। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, क़यामत के करीब इंसान को इस चीज की परवाह नहीं होगी कि उन्हें हलाल से कमा रहा या हराम से कमा रहा, बस उसे पैसों से मतलब रहता। पैसा पीर, ईसा पीर, मूसा पीर, पीरों का पीर, पैसा पीर, उसे पैसे से मतलब रहता। बट पैसा है तो बस हलाल से तो आंदे, हराम से तो आंदे, बट पैसा होना मिंजे, मैं मालदार होना, पैसा से मतलब। अम्मन अखज़ मिन हलालिन औ हराम, इंसान को ला युबाली याती ज़मानुन अला उम्मती, मेरी उम्मत पर वो जमाना आएगा लोगों को इस बात की परवाह नहीं होगी कि इन्हें हलाल से कमा रहा या हराम से कमा रहा। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसे जमाने में अपने आप को, अपने ईमान को बचाओ। मैं ये बातें कई बोल रहा हूं, कक्केरा में आने से पहले यहाँ के जिम्मेदारान ये टॉपिक मुझे कई को दिए। आप सोच सकते हैं ना, 100 टॉपिक हैं, हलाल हराम की इस टॉपिक कई दिए। मेरे भाइयों, ये तुम्हारे जन्नत या जहन्नम के रास्ते पर जाने वाले नेक अमल, बद अमल जो है ना, उससे पहले तुम्हारी रिस्क, तुम्हारे बदन, तुम्हारे आजा, तुम्हारे बदन की कुव्वत, तुम्हारे जिस्म में नशोनुमा होने वाला खून, ये तमाम चीजें ये डिपेंड करती हैं तुम्हारी रिज़्क़ से। रिज़्क़ हलाल तो अमाल कबूल, रिज़्क़ हराम तो अमाल मरदूद, मुंह पर मार दिए जाएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क़यामत के करीब इंसान अमानत में खयानतें करने लगेंगे, लोग रिश्वतें खाना शुरू कर देंगे, सूद की कसरत आम हो जाएगी, बच्चे घरों में भूखे रहेंगे लेकिन नाच गाने के आलात अपने ऊपर हलाल कर लेंगे, शराब खाने में शराब पानी के जैसे पिया जाएगा। आज आ गया वो जमाना, बच्चे बच्चे शराबी, बुढ़े बुढ़े शराबी, सूद को 1000 नामा देखो बिजनेस में शामिल कर डाले, 1000 किस्म के नामा दे डाले। अरे वो गवर्नमेंट क्या की सब्सिडी दे रहा कहते, बच्ची पैदा हुई तो भाग्य ज्योति देता कहते, भाग्य लक्ष्मी देता कहते, बचपन में कार्ड बनाए तो बेटी 18 साल की होने के बाद चक्का आती कहते, लंबे लंबे पैसे के बांडा आती कहते। मेरे भाइयों, ये हराम है, ये हराम है। ऐसी एक मिसाल नहीं, ऐसे 10 चीजें हैं, ऐसे कई चीजें, उसमें की एक मिसाल बता रहा हूं मैं। पैसे के लालच में आको ईमान का सौदा नहीं करना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में ला तज़ूल क़दम इब्नु आदम, इब्ने आदम के पैरों में जुम्बिश भी नहीं आ पाएगी, उसे 4 चीजों का सवाल किया जाएगा। वो फी रिवायतिन अन खम्सा, एक रिवायत में 5 बातों का सवाल किया जाएगा। उनमें से एक सवाल अल्लाह क्या करेगा, वअन मालिही ऐन इक्तसब, तेरे माल के बारे में अल्लाह सवाल करेगा, कैसे कमाया, वअन अनफकू, और इसे कहां कैसा खर्च करया। अल्लाह तुम्हारे माल के बारे में सवाल करेगा, इसीलिए माल को सही ढंग से कमाना, सही जगह खर्च करना, अल्लाह के पास हिसाब देना है तुमने। हमारे घर में बिरयानी पकती, ऐसा चिकना बिरयानी, चर्बी की बिरयानी, ओरिजिनल घी दाल को भगा रहा उसमें, इधर 10 घरा में बस जाना, पड़ोस के उधर 10 घरा में बस जाना, बिरयानी पेट में भरे तका खाती, कभी अड़ोस पड़ोस याद आते नहीं हमना। दूसरे दिन बासी हो को सटने के काबिल की रहती ना, जब हमें बोलते हैं जाओ गरीब में है ना पड़ोसिया में उसे दे जा, कई को ताजी पकेस्टम को पड़ोसिया याद आई नहीं क्या, खा खा को गले में भर लेने के बाद दूसरे दिन वो कुत्तियां को डालने से पहले, कचरे टोटी में सटने से पहले क्या पड़ोसिया याद आती। क़यामत के मैदान में तेरे माल के बारे में अल्लाह सवाल करेगा,
ये भी पूछेगा है मेरे बंदे मैं भूखा था क्यों मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था क्यों मुझे पानी नहीं दिया, मैं नंगा था क्यों मुझे कपड़ा नहीं दिया। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, ये कहेगा, ये हदीस कुदसी है, ये सही हदीस है। बंदा ये सुनकर कहेगा अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम, ऐ अल्लाह तू इन चीजों से पाक है, तू इन चीजों से बरी है, तुझे खाने की जरूरत नहीं, पीने की जरूरत नहीं, कपड़े की जरूरत नहीं, तू भला कैसे भूखा हो सकता है, कैसे प्यासा, कैसे नंगा। अल्लाह कहेगा तेरा पड़ोसी भूखा था, गोया मैं भूखा था, तेरा पड़ोसी प्यासा था, मैं प्यासा, तेरा पड़ोसी नंगा था, मैं नंगा था। अल्लाह अकबर। कभी ख्याल करे हमें दाल को, डब्बा को, बिरयानी खा को झूले में झूलना मालूम हम ना, रिश्तेदारों का ख्याल करे, वो माल कैसा कमाए, कभी सोचे उस माल को कहां खर्च करने के लिए अल्लाह हमने दिया, कभी गौर करे। अल्लाह सवाल करेंगे जी कयामत में, क्या जवाब देती तुम्हें, क्या जवाब देती। वलो तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम, तुम देखोगे मुजरिमीन को अल्लाह के सवालों पर शर्मिंदगी से निगाहें नीचे किए लाजवाब हुए खड़े रहेंगे और ये कहेंगे रब्बना अबसरना, ऐ हमारे परवरदिगार अब हमने देख लिया, फरजिअना नअमल सालिहा, मेरे मौला अब जर्रा दुनिया में जाने दे, ऐसा जर्रा जाको, ऐ अल्लाह पुंड्या पुंड्या हुंड्या हुंड्या जमा कर कर को तिजोरिया में कते, बैंका में कते, नाली के नीचे कते, दीवालों के पीछे कते, बहुत जगह जमा कर कर को रखा था। मैं क्या समझाता अभी बहुत साल जीतू, अभी बहुत एंजॉय करतो, अचानक हार्ट अटैक आको लटक ले को, अचानक मर को चले गया, दुनिया से आ गया है। अल्लाह थोड़ी मोहलत दे, वो सारी दौलत तेरे रास्ते में खर्चा कर को आतू, मस्जिदां को देखा तू, मदरसे को देखा तू, यतीमां को देखा तू, गरीबां को देखा तू। अल्लाह बोलता तेरी जिंदगी 32 थी, तेरी जिंदगी खत्म हो गई, वो जो छोड़ का है ना, तेरी जोरू बच्चे खानदान वाले रिश्तेदार लड़ले मरले को पूरे बांट ले खा ले खत्म कर डाले। अरे जब तक सांस है इबादत करने का चांस है, सांस खत्म इबादत का चांस खत्म। अल्लाह ताला जब तक हमने मौका दिया अच्छे कामा करो जी, हलाल तरीके से कमा खाओ जी। अच्छा बाज लोग हराम में हाथा पड़ा मारती, उनको भरोसा नहीं अल्लाह की जात को। बनी इसराइल को अल्लाह कई का अजाब दिया मालूम, आसमान से मन्ना सलवा उतरता था उनके वास्ते। मन्ना सलवा का क्या, जन्नत की नेमत जी, जन्नत की नेमत आसमान से उतरती थी, रोजाना मन्ना सलवा लिए कि खाएगी, घराम जा घराम से सोएगी, मेहनत नहीं क्या भी नहीं। अरे कितना उतरता था, वत्ता ले खाए तो हुआ, डबल डबल कर लेने का, डबल डबल हाथ में से कर लेने का। मूसा अलैहिस्सलाम बोलते कई कुछ डबल कर ले रही, सबा उतरता कि नहीं उतरता कि किसे मालूम, आज का भी सबा का भी। अरे सबा भी आता जी, अल्लाह पर भरोसा रखो। नहीं नहीं आइए आज का या सबा का कर लेते थे। और क्या करते थे, खा खा को हलवा कते, तलेस मच्छियां कते, खजूरा कते। मूसा बस बस हो गया, जरा मसालेदार आइटम निकालो जी, प्याज कते, लहसुन कते, लवंग कते, चकला कते, डकारा आना, बदहजमी होना, जरा मसालेदार आइटम रंजे हलवे खागा बस हो छोड़ा। अल्लाह ताला आसमान से अपनी नेमतें रोक लिया, मन्ना सलवा बंद कर डाला। अब बोले हल जोत के खाओ, बीज बो के खाओ। मेरे भाइयों अल्लाह की नेमत थी वो मन्ना सलवा, ना शुक्रापन करे, अल्लाह पे भरोसा उड़ गया इनका, अल्लाह अपनी नेमतें रोक लिया। तुमने भरोसा नहीं किया अल्लाह की जात पे। अल्लाह कुरान में बोलता हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वो अल्लाह ऐसा रिज़्क़ पहुंचाने वाला जो सबसे मजबूती से अपने मखलूक को पालने वाला है। अरे कितना जबरदस्त पालता तुम्हें तस्वुर भी नहीं कर सकते। चंद चीज़ें मैं बताता हूं आपको, आपकी अक्ल बहरान हो जाएगी, हैरान हो जाएगी आप सुनकर चंद बातें, चंद कुदरती नजारे। अल्लाह बंदों को कैसा खिलाता, कैसा पिलाता, मखलूक को कैसा चलाता। कुरान में एक सूरा है सूरह नमल के नाम से। नमल का तो किसे बोलती, चूंटी, एंट, ये एंटी एंट, चूंटी, चुमटी, इरबे, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲ ಕೆಳಗಡೆ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಇರಬೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇರಬೆ,
वो छोटी चुमटी को अल्लाह कुरान में नमल के नाम से एक सूरा जमा करे। वो सूरा क्या सूरा जी, वो माशाअल्लाह कुरान में कब तो भी पढ़ को देखो, घंटिया से व्हाट्सएप में फेसबुक में अंगलियां कर ले, एक नई काम आने के वीडियो देख ले, एक बढ़ती ना कुरान का सूरा कब तो भी एक बार पढ़ को देखो। अल्लाह बोलता हमने उस चूंटी को इल्म हिकमत दिया, उसे अक्ल दानाइश हमने दी। अल्लाहु अकबर। साइंस इस चूंटी पर गौर करता है, तदब्बुर करता है, इसके ऊपर फिल्म बनाता है। ज्योग्राफिक चैनल, डिस्कवरी चैनल में देखो इसके फिल्में। बारिश का मौसम आने से पहले 4 महीने पहले ये चूंटी जमीन से 6 मीटर से 8 मीटर अंदर सुराख कर को अंदर बड़ा एक खड्डा बनाती, एक गड्ढा बनाती, एक होल बनाती और उसमें अगले 4 महीने का फूड जमा करती है चूंटी। 4 महीने तक बारिश के मौसम में बाहर नहीं निकलती। इसे मालूम बाहर निकली बारिश के सैलाब में, चिक्कड़ में, या तो डूब जातो या तो मर जातो। जमीन के अंदर 4 महीने पहले 4 महीने का अनाज जमा करती है, इधर से उधर से घूम को अंडे डालती, बच्चे निकालती, 4 महीने तक जमीन के अंदर रहती। बारिश का मौसम गुजरने के बाद बाहर निकल कर आती। कौन सी दिया इसे अकल, कौन सी दिया इसे रिज़्क़? मेरा मालिकुल मुल्क वो अल्लाह जिसे हम सुब्हानहू व तआला जल्ल जलालहू के नाम से याद करती, वो अल्लाह दिया इसे अकल, वो अल्लाह दिया इसे रिज़्क़। उस चूंटी को अल्लाह रिज़्क़ दे सकता तो हम ना क्या अल्लाह रिज़्क़ नहीं देता क्या? अल्लाह हमना नहीं खिलाता क्या? मेरे भाइयों, दुनिया में आर्कटिक टर्न नाम का एक परिंदा है। उसका नाम क्या? आर्कटिक टर्न। अगर नाम भूल रही तो लिख लो या रिकॉर्डिंग कर लो, या यूट्यूब में, गूगल में ये प्रोग्राम से उठ को जाने के बाद गूगल में सर्च कर को देखो आर्कटिक टर्न, ये परिंदे का नाम। दुनिया का एक ऐसा अजूबा परिंदा, ये दुनिया की सबसे लॉन्ग जर्नी करने वाला परिंदा है। शिमाली अमेरिका से उड़ता इन्हें आसमान में, अफ्रीका के, जुनूबी अफ्रीका के जंगलों को 19 दिन में परवाज तय करके जाको वहां लैंड करता। आप दुनिया का वर्ल्ड मैप जब देखेंगे, शुमाली अमेरिका से जब उड़ता है ये परिंदा, तो यहां से अफ्रीका के जंगलों के दरमियान 90,000 किलोमीटर का फासला। कितना? 90,000 किलोमीटर। अल्लाहु अकबर कबीरा। चांद को 3 बार जाको आए जा हमें 90,000 किलोमीटर, 90,000, 56,623 मील, 50 पर 6,623 मील वो किलोमीटर में बदले तो कितना होता? 90,000 किलोमीटर होता। 90,000 किलोमीटर का फासला तय करने वाला आर्कटिक टर्न परिंदा शिमाली अमेरिका के जजीरे से उड़ता और साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाकर पहुंचता। क्यों? साल में एक मरतबा इधर उड़ कर आता, इन्हें उधर उसका रिज़्क़ खत्म हो जाता, इधर उड़ को आता। ये गिद्ध चील के जैसा ऐसा साइलेंट अपने परों को रखकर उड़ने वाला परिंदा नहीं है, अपने परों को हरकत करते हुए उड़ने वाला परिंदा। कितने दिन में सफर तय करता? 19 दिन में सफर तय करता। दुनिया का लॉन्ग जर्नी उड़ने वाला परिंदा आर्कटिक टर्न। अच्छा, 19 दिन में सिर्फ समंदर ही समंदर, हमें बोलती ना 7 समंदरा, 7 समंदरा, ये 7 समंदरी है। 7 समंदरा के ऊपर से उड़ता। ये परिंदे को क्या तो भी लैंड कर को जरा रेस्ट करने को वास्ते एक भी जजीरा नहीं बीच में, एक भी आयरलैंड नहीं बीच में, एक भी जजीरा नहीं, सिर्फ समंदर ही समंदर। बारिश आए तो भी उड़ना, धूप आए तो भी उड़ना, बर्फ गिरे तो भी उड़ना। अच्छा, रात के अंधेरे में ना जमीन में कोई शहर है उसे देखकर डायरेक्शन मालूम कर सके, ना आसमान में कोई सितारे नजर आनी, बादल, घने बादल, ऊपर भी काला अंधेरा, नीचे भी अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा। उड़ता है ये परिंदा। कौन जी इसे डायरेक्शन दे रहा? कैसा जी उड़ रहा? 19 दिन तक उड़ता है ये परिंदा, बगैर रुके, बगैर अपने आप को रेस्ट लिए। साइंसदानों ने इस परिंदे पर सर्च किया, 19 दिन तक खाता क्या, इन्हें
सोता कभी ने, रेस्ट कब लेता, कैसा उड़ता है परिंदा। जब इसके ऊपर सर्च करे, अक्ल हैरान हो गई साइंटिस्टों की। इसके ऊपर बड़े बड़े वीडियो बनकर हैं गूगल में, बाद में देखो तुम्हारा ईमान ताजा हो जाता। बड़े बड़े वीडियो बनकर हैं इसके ऊपर। इस परिंदे का जो भेजा है, अल्लाह ताला जो भेजा बनाया, आधा भेजा आधे घंटे के वास्ते सुलाता, आधे भेजे को जगा को रखता, फिर आधे घंटे के बाद ये भेजा सुलाता, इधर का भेजा जगाता। ऐसा ये परिंदा अपने आप को रेस्ट भी लेता और उड़ते रहता। 19 दिन का फूड अपने पेट के मैदे में लेता, निकालता, जुगाली करता, फिर दूसरे मैदे में ट्रांसफर करता। 19 दिन का खाना बगैर रुके के 90,000 किलोमीटर उड़ने वाला ये परिंदा। अल्लाह वो परिंदे को रिज़्क़ दे सकता, हमना नहीं देता क्या जी? अरे हमना नहीं खिलाता क्या जी? कल को हमने भरोसा नहीं जी हमारे अल्लाह को। अल्लाह अकबर। बुखारी की हदीस सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, जब भी तुम में से कोई आदमी अल्लाह ताला जिसे पैदा करने का इरादा करे, तुम्हारे बाप के पीठ में, तुम्हारे मां के सीने के हड्डियों में तुम पानी की शक्ल में, जिसे हम माद्दा मनविया कहते हैं, तुम्हारे बाप के पीठ में, तुम्हारी अम्मा के सीने के हड्डियों में तुम पानी थे। अल्लाह ने इन दो पानियों को मादर रहम में जमा किया। मादर रहम में 40 दिन तक हम पानी की शक्ल में थे, उसके बाद 40 दिन वो खून की शक्ल अल्लाह उसे तब्दील कर दिया। फिर नेक्स्ट 40 दिन उसे गोश्त का टुकड़ा बना दिया। फर्स्ट 40 दिन पानी, सेकंड 40 दिन खून, थर्ड 40 दिन गोश्त का टुकड़ा। 40 40 40 120 दिन जब हमने अपने मां के पेट में 4 महीने की मुद्दत को कंप्लीट किया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आता है और अल्लाह के इजाजत से उसकी तकदीर उस पर चिस्पा करता है। मेरे मौला 4 महीने, 40 दिन 40 दिन 40 दिन 120 दिन, 30 दिन का 1 महीना, 4 महीने 120 दिन के 120 दिन जब हमने अपने मां के पेट में मुकम्मल किया, अल्लाह का एक फरिश्ता उस गोश्त के टुकड़े में रूह फूंकता। 4 महीने के बाद उसमें जान आती, हरकतां करता, हलता बच्चा। अब अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह की इजाजत से तकदीर चिस्पा करता उसके ऊपर। क्या लिखना? अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से लिखता फरिश्ता, इन्हें दुनिया में जाको कितना कमाता, कितना खाता, क्या क्या हासिला करता, कितने बिल्डिंगा में सोता, कितने कारा में फिरता, कितने आदमियों का कोंपा डुबाता, कितने आदमियों को हाल करता, सारे बातें अल्लाह ताला का फरिश्ता लिख डालता पहले। कब? हमें दुनिया में आने के 5 महीने पहले हमारी रोजी रोटी हमारे मां के पेट में तय कर दी जाती है। अल्लाह सब लिख डालता, इन्हें तच खाता है, तच पीता। अब दुनिया में आने के बाद हमें कितने हाथा मारे तो भी, कितने पैरा मारे तो भी, हमारे मुकद्दर के दाने से एक दाना बढ़ को हमें खाते नहीं। हमें कितने हाथा पैरा मारे तो भी हमारे मुकद्दर से बढ़ को एक खतरा पानी नहीं पीते। वह तेज दाने, वह तेज खतरे पानी होने के बाद अल्लाह का फरिश्ता आता, हल्लक में हाथ डाल जान निकाले चले आता। जब मुकद्दर की रोजी रोटी तय है तो हमें हराम के वास्ते कई खाता पैरा मारना, हराम से कई कमा को खा को आखिरत बर्बाद करना, हलाल से कमा को खाना जी, अल्लाह की रजामंदी से रिज़्क़ हासिल करना जी। अच्छा, मेरे बयान सुनने वाले मर्द बाने, बुड्ढे, बच्चे, यहाँ अंदर बाहर, फिर वहां पर्दे में, भाई कहाँ बहुत सारे बैठी हैं खवातीन माशाअल्लाह, बहुत सारे शाहपुर से, सगर से, गोगी से, इधर बहुत अतराफ अकनाफ रंगमपेट से, बहुत सारे और भी मुझे मालूम नहीं गवा, बहुत सारे लोग आकर हैं। बहुत खुशी हुई मुझे इतने लोग देखकर। अब मैं आपको एक सवाल करता हूं, जन्नत में कितने लोग जाना चाहती? अब कौन कौन जन्नत में जाना चाहती? जरा हाथ उठाओ, देखेंगे जन्नत में जाने वाले। अरे अल्लाह के फरिश्ते देख रहे जी, हम ना दिख रहे नहीं है, लेकिन फरिश्ते तुम ना देख रहे हैं। तुम ना नको क्या जी जन्नत? हाथ उठाओ जी, उठाओ, होना उठाओ, उठाओ, शर्मानो को। मैं भी हाथ उठा रहा हूं, मुझे भी अल्लाह की जन्नत होना। माशाअल्लाह, हाथ उठाए। अब नीचे करो। अब सुनो, एक पते की बात बताता हूं। ये कई हाथ उठाने लगा तो मालूम नहीं, आपके अंदर एनर्जी आने हमें,
کوئی انٹرٹینمنٹ کرنے کے واسطے ہمیں، بلکہ ایسے دینی محفلوں کو فرشتے تلاشتے رہتے. اللہ پوچھتا کیا ہو رہا ہوا؟ اللہ تیرے دین کی باتیں سیکھ رہی سکھا رہی. کیا ہونا کہتے ان کو؟ اللہ تیری جنت ہونا کہتے. کون سی چیز سے پناہ مانگ رہی انہوں؟ اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہی. ایسا اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ ککیرا کی مسجد میں جمع ہوئے بزرگ، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، سب لوگ جو میرے دینی محفل میں، دینی پروگرام میں جمع ہوئے ہیں، میرے عزت و جلال کی قسم ان پر میں نے جنت واجب کیا، جہنم حرام کیا. یہ محفلیں جنت واجب کراتی، جہنم حرام کراتی. ماشاءاللہ. اب میں نے آپ کو اسی حدیث کو اپنے دل میں رکھ کر ہاتھ اٹھانے لگایا. ماشاءاللہ سوب جنے کو جنت ہونا کہتے، مجھے بھی ہونا جنت. اچھا جنت ہونا کا تو ہاتھ اٹھائے تو جنت نہیں ملتی. قیامت کے دن اللہ ایسا نہیں بولتا کسے کسے ہونا با جنت، کسے ہونا ہاتھ اٹھاؤ، اسے اسے ہونا، آبا آ جا با اندر جا، ایسا نہیں بولتا اللہ. جنت میں جانے کے لیے حلال کھانا پڑے گا، حرام سے بچنا پڑے گا. کیونکہ حدیث رسول جامع ترمذی کی روایت، میرے نبی کا فرمان، لا تدخل الجنت من غزی بالحرام. وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے پیٹ کے لقمے کو حرام کے کمائی سے کھائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کیا بول رہی؟ وہ آدمی جنت میں ہرگز ہرگز نہیں جا سکتا جو حرام لقمے سے پیٹ پالتا. اب آپ لوگ جنت میں جانا چاہتی گا تو بڑے جوش سے ہاتھ اٹھا ڈالے. اب بولو کیا جنت میں جانے کے واسطے حلال کھا کو حرام سے بچنے تیار ہیں کیا؟ ماشاءاللہ. اب میں گناتے جاتا ہوں تمہارے سامنے لسٹ، کون کون کیسا کیسا حرام کاریا میں پڑیں گے. تو اللہ نہ کرے میں یہ نہیں پوچھتا تمہیں یہ گناہ میں ہیں کیا، تمہیں وہ گناہ میں ہیں کیا، نہیں پوچھتا. بس میں میری لسٹ میں گناتے جاتا ہوں. اگر ان لسٹوں میں، ان فہرستوں میں اللہ نہ کرے تمہیں اگر ہیں ان حرام کی لسٹوں میں، اگر تمہاری زندگی اس میں ملوث ہے تو اللہ کی جنت پانے کے لیے اپنے آپ کو حرام دفتر سے باہر نکال لو. کیونکہ ابھی بولے نا، وعدہ کرے نا آپ لوگ، ہم جنت میں ہمیں جانا چاہتے ہیں، ہمیں جانا چاہتے ہیں، ارے جنت خالی ہاتھ اٹھانے سے نہیں بھائی، حلال کھانا پڑتا بھائی، نیک عمل کرنا پڑتا بھائی، تب بھی جنت ملتی. سو جنت میں جانے اپنے آپ کو حرام کاری سے بچا کر اللہ کے سامنے حلال خور بن کر حاضر ہونے تیار ہیں کیا؟ ماشاءاللہ. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری زندگی کیسے حرام کاریوں میں ملوث ہے. نمبر 1، ہمارے درمیان بہت سارے لوگ بینک سے لون لے کر اپنے بزنس کو چلاتے. یہ بینک کا لون کہیں کا یہ سود ہی ہے، اور سود حرام ہے. سود حرام ہے، بہت بڑا گناہ. چھوٹا گناہ ہمیں، بہت بڑا گناہ. اللہ سود کے بارے میں مذمت کرتے ہوئے بولتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دل میں رتی بھی ایمان زندہ ہے. اے مومنو، تم اگر واقعی میں مومن ہو سود سے بچو بول رہا اللہ. تو آپ لوگ بینک سے لون لے کو بزنس چلاتی نا، یہ تمہارے لیے جائز کیا؟ ناجائز ہے جی، یہ حرام ہے جی. یہ کوئی ضرورت نہیں لاکھوں کا لون نکال کو کروڑوں کا بزنس چلانے کی. ارے جتنی چادر وتا پیر، جتنی حیثیت وتا کاروبار. ارے تمہارے پاس 10,000 ہے نا، وہ 10,000 کی ترکاری لے کو فٹ پاتھ پر بیٹھو، کافی ہے. تمہارے پاس ایک 50,000 ہے نا، 50,000 لو چپلاں کی، کیا تو بھی ایک کپڑیاں کی لے کو فٹ پاتھ پر بیٹھو، کافی ہے. کوئی ضرورت نہیں بڑے شو روم میں مینیجر کے چیئر پر کرسی حلالک بیٹھنا، میں بڑی شان سے بیٹھنا. ارے ضرورت نہیں جی. بینک سے لون لے کو لاکھوں کا بزنس چلانے کی ضرورت ہی نہیں. حرام ہے، بینک کا لون لینا حرام ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچو اور دوسروں کو بچاؤ. بعض لوگ گھر بنانا شروع کرتے، ابھی بناتے بناتے بیسمنٹ اٹھے رہتا، بھیما کالما اٹھے رہتی، حضرت کے جوب کے پیسے پورے خالی ہو جاتی. کیا سمجھے رہتا انہیں؟ دیوالا اٹھ کو چھت ڈال ڈال تو یہ پیسے ہمیں سمجھے رہتا. ابھی یہاں نیچے کی فاؤنڈیشن ہوئی رہتی، ہاتھ میں خالی ہو جاتی. اب کیا کرنا؟
خاندان میں عزت کا سوال, جماعت میں عزت کا سوال, محلے میں عزت کا سوال. اب اسے فوراً بلڈنگ پورا کرنا, بڑے شان سے شروع کرے, آدھے کام کو آکو رک گیا, کیا خالی ہو گئے ہاتھ میں, کیا بولنا لوگوں کو, بینک سے لون لے کو بلڈنگ کمپلیٹ کرتا, بینک سے لون نکال کو بلڈنگ بنتا. ارے کیا ضرورت جی تم نے بلڈنگ بنانے کی, بینک سے لون لے کو, سود کا پیسہ لے کو بلڈنگ بنانے کی ضرورت کیا اللہ بولتا کئی کو با تو مریا نا, تیرے بیوی بچوں کے واسطے حرام کی بلڈنگ کہیں کھڑا کر کے آیا نہیں, اللہ پوچھتا کیا, نہیں, ضرورت اس نہیں ہم نا بینک سے لون لے کر بلڈنگ کھڑا کرنے کی. میں کہتا ہوں حلال کی جھوپڑ پٹی سے, حرام کی تمہاری بلڈنگ سے حلال کی جھوپڑ پٹی تمہارے لیے بہتر ہے, حرام کی بلڈنگ سے حلال کی جھوپڑ پٹی بہتر ہے, حرام کی بریانی سے حلال کی روٹی چٹنی تمہارے لیے بہتر ہے, حرام کی کاروں میں گھومنے سے حلال کی سائیکل تمہارے لیے بہتر ہے. جی وہ سائیکل بھی لینے کی حیثیت نہیں تو اللہ 11 نمبر کا پیران دیا, تمہارے 11 نمبر کی بس فٹ کروا لیا, چلے جاؤ ہر قدم پر نیکی. مسجد کو آئے تو پھر ادھر ادھر گناہ کرنے گئے تو ہمیں مسجد کو آئے تو ہر قدم پر نیکی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, کیا ہے بینک سے لون لینا حرام ہے, نہیں لینا, ہرگز ہرگز نہیں لینا. اگر کوئی لون کے چکر میں پڑی, سود لے رہی سود دے رہی, اللہ کے واسطے بچو, یہ حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے حرام کاری کو پسند نہیں کرتا. حرام کا 1 روپیہ تمہارے پیٹ میں گیا تو, سنن نبی داؤد ابن ماجہ کی حدیث, اللہ کے نبی بیان کر فرماتے 1 روپیہ حرام کا کھانے والا 40 دن کی اس کی کوئی نماز کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر, کھایا انہیں جا کو 1 لقمہ, اللہ عبادت قبول نہیں کر رہا کب تک, 40 دن تک. کئی کو وہ 1 لقمہ نگلے رہتا نا, اس سے جو باڈی میں انرجی پیدا ہوتی, اس لقمے سے جو اس کا بلڈ بنتا, اس کا اثر باڈی میں 40 دن رہتا. 1 لقمہ تو نگلیا رہنگا, 40 دن تک میرا رب تیری عبادت قبول نہیں کرتا. کھایا تھا 1 منٹ میں 10 سیکنڈ میں ایک نوالا, لیکن 40 دن 40 راتاں کی نماز تیری قبول نہیں کرتا. اللہ کے نبی صحیح مسلم شریف کی حدیث میں بیان کرتے 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. ثلاث مستجاب الدعوات, 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی ضرور دعائیں قبول کرتا ہے. وہ کون ہے؟ دعوت المسافر, مسافر کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی, ہر مسافر کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. ودعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا اللہ ہمیشہ قبول کرتا ہے, کبھی رد نہیں کرتا. ودعوت الوالد علی ولدہ, باپ کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلدی اللہ قبول کر لیتا, کبھی رد نہیں کرتا. باپ کی دعا بہت جلدی اللہ قبول رد نہیں کرتا. اللہ کبھی رد نہیں کرتا. جب بھی باپ اپنے بچے کے حق میں دعا کرے, میرا اللہ اس باپ کی دعا ضرور قبول کرتا. مسافر کی دعا, باپ کی دعا, مظلوم کی بد دعا. اب یہ حدیث سے معلوم ہوا اللہ 3 آدمیوں کی ضرور دعائیں قبول کرتا. اور ایک حدیث سنو مسلم شریف کی, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ایک ایسا آدمی جو مسافر ہے, جس کے بال پراگندہ, جس کے حال پراگندہ ہے, سفر میں ہے, پریشان حال ہے, وَيَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ, اپنے دونوں ہاتھ سفر میں پریشان ہو کر آسمان کی جانب اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے اپنی زبان سے کہتا ہے یا ربی یا ربی, اے میرے رب اے میرے رب. اللہ میں مسافر ہوں, اللہ تو مسافر کی دعا کبھی رد نہیں کرتا نا. اللہ میری دعا قبول کر, میں بہت پریشان ہوں. اللہ کیا بولتا؟ اللہ بولتا میرے بندے مسافر کی دعا تو میں کبھی رد نہیں کرتا, لیکن میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام ان یستجاب لک. اے میرے بندے تیرا کھانا حرام کا, تیرا پینا حرام کا, تیرا پہننا حرام کا, تیرا اوڑھنا حرام کا, تیرا مکان حرام کا, تو ہی بتا میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ جبکہ میں مسافر کی دعا رد نہیں کرتا, تو حرام کا کھانے کی وجہ سے, حرام کا پینے کی وجہ سے مسافر ہے تو بھی میں تیری دعا قبول نہیں کرتا.
मैं तेरी दुआ नहीं सुनता, बोल रहा अल्लाह ताला। इसीलिए कभी भी हराम लुकमा नहीं खाना, बड्डी नहीं लेना, हरगिज हरगिज नहीं लेना। अच्छा, और क्या करती हैं हमें? बाज लोग गाड़ियां लेती, गाड़ियां कैसा? कैश में लिए तो 10 लाख में, इंस्टॉलमेंट में लिए तो 12 लाख में। कौन कैश देख लेता भाई? डाउन पेमेंट देंगे, 1 लाख देंगे, ले ले कहेंगे, वार वार महीना महीना बड्डी भल्ले 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 को वो 12 तो भी होंगे, 13 तो भी होंगे, लेंगे ले। हराम जी ये, अजी ये इंस्टॉलमेंट में लेना जायज नहीं जी, ये हराम है ये। अरे अल्लाह तुम ना कितनी ताकत दिया वती लो ना। साइकिल के बजाय तुम्हारे पास अगर मोटर बाइक खरीदने की है, बाइक लो। कार लेने की है, छोटी कार वो लो। बड़ी बड़ी कार इंस्टॉलमेंट में लेने की जरूरत क्या है? तुम ना, जायज नहीं है ये, हराम है ये। और बाज लोग क्या करती? हराम कारियों में पड़े हुए लोगों को बोल रहा हूं मैं। और बाज लोग क्या करती? घर को गिरवी में रख डालती। घर को हमारे कर्नाटक में क्या बोलती? मनीगे लीज अल्ली इडोदू। घर को लीज को डाल लेना, रहन में रख लेना। उसे क्या तभी नामा दो तुम्हें। इधर पैसा को बड्डी नहीं, उधर घर को किराया नहीं। ए नहीं मौलवी साहब, वो मौलवी साहब बोले जायज कते, ये मौलवी साहब बोल रही रह जा कते। दलील क्या है जी? रह जा कते, कते इस्लाम में नहीं चलता। दलील क्या है? हक परस्त उलमा आज भी जिंदा हैं, बड़े बड़े दक्तूर मदनी उलमा जिंदा हैं माशाल्लाह। एक नहीं कई उलमा से मालूम करो, रहन को रखना, लीज को रखना जायज नहीं। घर हमें क्या करती? लिखा लेती 4 साल के वास्ते, 5 साल के वास्ते 6 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, बॉन्ड पेपर, स्टाम्प पेपर। उधर पैसा को बड्डी नहीं, इधर घर को किराया नहीं। अरे जायज नहीं चाहिए तुम्हारे लिए, हरगिज हरगिज जायज नहीं। और जिस घर में हमें लीज में डालने को, अड़ू डालने को हमें है, हमारी अम्मा, हमारी जोरू, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहन, उस घर में नमाज हम पढ़ रही, अल्लाह कबूल करता समझें क्या? हराम के घर में लीज को डाल लिया सो घर में, बड्डी बन रही सो घर में, हमें नमाज पढ़ रही, हमारी अम्मा नमाज पढ़ रही, अल्लाह कबूल करता समझी? हरगिज हरगिज कबूल नहीं करता। घर को लीज को डाल लेना जायज नहीं, लीज को नको डाल लो, अगर डाल लिए है निकालो। बाज लोग इसमें होशियारी फिर अलग, ऊपर से चालबाजी, चालाकियां, अल्लाह अकबर। क्या मौलवी साहब, ये घर सिटी के लिहाज से, रायचूर, बीजापुर, गुलबर्गा, बीदर के लिहाज से ये घर 10,000 रुपए किराया, लेकिन हमें 1,000 रुपए अचार चाके सरकार जर्रा देती। मौलवी साहब किराए के नाम पर देती हमें, लेकिन 10,000 नहीं देते, 500 रुपए, 200 रुपए, 1,000 रुपए बराए नाम देती। कई देती जी, कई देती। वो 1,000 रुपए जो तुम्हें दे रही, बाकी के 9,000 तुम्हारे पैसे की बड्डी चना उन्हें तोड़ ले रहा, तुम्हारे पैसों का सूदी चना जी उन्हें काट ले रहा। जायज नहीं जी ये। घर को लीज को डाल लेना जायज नहीं। अगर डाल लिए हैं अल्लाह के वास्ते बाहर निकलो। हाँ एडवांस दो, घर को एडवांस दो, वो एडवांस के बदले में तुम्हारे किराए में रत्ती भी फर्क नहीं आना। 10,000 एडवांस देती कि 10 लाख एडवांस देती कि तुम्हारे एडवांस देने के पैसों से तुम्हारे किराए में 5 पैसे का भी फर्क नहीं आना। बराबर किराया भरना, तुम्हें मुकम्मल किराया भरना। अच्छा ये बीमारी हो गई। और बीमारी क्या है हमारे अंदर हरामकारियों की? बाज लोग संगा के नाम पर हमारे बैकां को गल्या गल्या में मंगा बना को बिठा डाली। संगा के नाम पर मंगा, मंगा के तो कोती मंगा ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ 50,000 25,000 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ। अल्लाह अकबर। हमें बोलती क्या जी? हमारी औरत को बेपर्दगी का जनाजा वहां जाको कौन दे रही? सो ईसाइयों का मिशन है ये संगा, ईसाइयों का। लोगों को खर्जा देना, लोगों को दवाइयां देना, फ्री ट्रीटमेंट देना और उनके माइंड को डाइवर्ट करना, उनको मजहब तब्दील कराना। खैर वो जो भी है, संगा के नाम पर हमारी बीवी को बेपर्दगी लग जाकर बिठा रही। ले लेका संगा में पैसे, अब उन्हें ले लेकर आती 50,000। कई को मुल साहब कौन भी देने वाला नहीं, मुल साहब तुम्हें बड़े इससे बयाना करती ना, दो तुम्हें 50,000 देखेंगे, हाथ बदल देती क्या? खाली बयाना करने की क्या तुम ना आता सो? हमारी मजबूरी में कौन सी मदद करता हम ना? देव जी तुम्हें 1 लाख रुपए देखेंगे। नहीं भाई मैं भी नहीं दे सकता भाई, फिर लेती हमें संगा में लेने का। अल्लाह अकबर।
अरे अल्लाह के बंदे, कौन देन दे नहीं देन दे, मजबूरी में खिंजीर का गोश्त जान बचाने के वास्ते खाना हलाल बोले, लेकिन वो शराब पीना हलाल नहीं बोले अल्लाह के नबी, सूद खाना हलाल नहीं बोले, खिंजीर का गोश्त। अगर दूसरा चीज मिल गया तो वो भी हराम, कोई चीज नहीं दिख रही, खिंजीर दिख रहा, उसका गोश्त जान बचाने लास्ट स्टेज पर खा सकती, वो खा सकती है तो सूद भी खा सकती, शराब भी पी सकती, जिना भी कर सकती, नहीं बोले इस्लाम। जितनी इजाजत दिया वत्ती ची इजाजत। तुम्हारी जान जारी तो जाने दो, लेकिन हराम का लुकमा खाको नक्को मरो, संगा के पैसे नक्को खाओ, बड्डी के पैसे नक्को खाओ। तुम्हारी नमाज कबूल नहीं, तुम्हारा रोजा कबूल नहीं, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं। हज को जाती हजरत, लोगों का कोंपा डुबा को, इनकी उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले को हजरत हज को चले, और वहां जाने के बाद काबतुल्लाह तक जाने तक, हरम में पहुंचने तक, एहराम की हालत में पुकार ले जाती हजरत, हाजी साहब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हो गया, अय अल्लाह मैं हाजिर हो गया। जानते हो मेरा अल्लाह इस हरामखोर के लब्बैक पर क्या बोलता है? तो हदीस पढ़ी कब तो भी, लब्बैक लब्बैक पुकारना 21 सुन ले छोड़े, उसका अपोजिट आंसर क्या मिलता ये सुने क्या, ये पढ़े क्या? नहीं, पॉजिटिव भी पढ़ना, नेगेटिव भी पढ़ना। हमें अल्लाह को खाली लब्बैक लब्बैक पुकार लेके तो अल्लाह क्या आंसर देता करने का वो भी पढ़ ले जाना। अल्लाह बोलता अगर बंदा नेक नीयत से आया है, हलाल पैसों से आया है, नेक इरादे से आया है, उसके लब्बैक के दावत पर मेरा अल्लाह कहता है लब्बैक व सअदैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे तेरा आना मुबारक हो, तेरा हाजिरी देना मुबारक हो। लब्बैक व सअदैक, तेरा आना मुबारक हो, वेलकम, सुस्वागत, अहलन व सहलन, मरहबा। अल्लाह उसे मुबारकबादी देता उसके आने को, लेकिन वच एक हरामखोर लोगों का पैसा खा को, हराम तरीके से कमा को, हराम की पूंजी जमा कर को, इनका उनका मुंह मार को, वो बोलती ना 100 चूहे खा को बिल्ली हज को चली गई, तो वैसा दुनिया का कोंपा डुबा को हज को जा को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारा, तो मेरा अल्लाह बोलता ला लब्बैक वला सअदैक, तेरा आना भी मुझे पसंद नहीं, तेरा हाजिरी देना भी पसंद नहीं, चल निकल यहां से, चल निकल यहां से। उसके लब्बैक उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, हराम पैसे से हज को गए तो भी अल्लाह तुझे माफ करता नहीं, तेरा हज कबूल करता नहीं। इसीलिए हलाल कमा, कुछ हलाल खाना, नमाज भी कबूल, रोजा भी कबूल, इबादत भी कबूल, ज़कात भी कबूल, कुर्बानी भी कबूल, तेरा हज भी कबूल, उम्रा भी कबूल। अगर पैसे हलाल के नहीं, सारे चीजें बर्बाद, सारे चीजें सत्यानाश। संगा के नाम में कितने लोग अपने अपने औरतों को संगा के धंधे में फंसाई, संगा के नाम पर सूदकारी में मुलविस हो गई। अल्लाह से तौबा करो, सच्ची तौबा करो, क्योंकि सूरह बकरा 265 से लेकर 275, 289, 280 नंबर आयत, जो मैं आयतों के नंबर बोल रहा हूं जाको पढ़ो कुरान। 270, 275, 278, 280 ये नंबर, ये आयतें पढ़ो। अल्लाह क्या बोलता? फ़इन लम तफ़अलू, अगर इतना समझाने के बावजूद तुम सूद से नहीं बचे, संगा से नहीं बचे, लोन से नहीं बचे, हरामकारी से नहीं बचे, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तलवार उठा लो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। बोल रहा अल्लाह, है तुम्हारे अंदर इतनी जसारत, इतनी ताकत, इतनी जुर्रत कि तुम अल्लाह जल्लो जलालहू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुकाबले में तलवार बुलंद कर सको? है तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत? अल्लाह बोल रहा बचो, ऐ मेरे बंदे बच हरामकारी से। अगर इतना समझाने के बावजूद नहीं बच रहा, तलवार उठा ले मुकाबले में, अल्लाह के मुकाबले में तलवार उठा ले। बोल रहा अल्लाह, जंग करने के लिए, ऐलान जंग के लिए उठा ले तलवार। अल्लाह की खुदरत के सामने कोसे तिनके के पत्ते के धूल के मत दीजिए हमें, अल्लाह की खुदरत के सामने। इसीलिए बचो, अपने आप को बचाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस, अल मुअजमुल तिबरानी की हदीस, सुनन नसाई की हदीस, सुनन इब्न माजा की हदीस, जिसे अल्लामा अलबानी ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में सही करार दिया है। वो हदीस क्या है?
एक आदमी सूद जब खाता है, सूद जब किसी को खिलाता है, सूद के 69 गुना के दर्जे हैं। सबसे छोटा दर्जा, सबसे कमतर दर्जा, सबसे छोटा गुना, आदमी अपनी जनी हुई मां के साथ 36 बार जिना करे। अस्तगफिरुल्लाह मिन जालिक, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह मिन जालिक, अल्लाहु अकबर। थोड़ी देर खामोश रहकर गौर करो ये हदीस पर। हदीस रसूल खाली बोलने सुनने के वास्ते, हमें अमल करने के वास्ते रहने का। इतनी खतरनाक हदीस है ये, हदीस रोंगटे खड़ा कर देने वाली हदीस है। जरी देर खामोशी से सोचो, तसव्वुर करो, पूरी शरीयत इस्लामिया में इतनी गंदी मिसाल, इतनी गलीज मिसाल किसी और गुनाह के लिए नहीं दिया गया जो सूदखोरों के लिए दिया गया, हराम खोरों के लिए दिया गया। एक नंबर के हराम खोर, सूद खाने वाले, अल्लाह बोलता 70 पर 9 दर्जे गुना। बड़े गुनाह का तो जिक्र नहीं करूंगा मैं, सबसे छोटा गुनाह यह है आदमी 1 रुपया सूद का खाना, तुम्हारी जनी हुई मां के साथ 36 बार सोकर उठने जत्ता गुनाह। तसव्वुर करो जी, कितनी गंदी मिसाल जी ये। हमें हजारा के रुपए निगल रही, 100 के रुपए खा रही, शर्म आ रही नहीं, हम ना रखते भी हया नहीं हमारे अंदर। अल्लाहु अकबर। बैंक से अचानक मैसेज आता तुम्हारे मोबाइल को, योर बैंक इज ट्रांसफर 150 रुपीज इंटरेस्ट मनी। बैंक वाला 1,500 रुपए, 150 रुपए तुम्हारे के इंटरेस्ट के पैसे ट्रांसफर करे आगत मैसेज डालता। अब वो मैसेज ले मौली साहब का सिर खाने आते, मौली साहब मेरे बैंक में पैसे रखा था, एक 1,500 रुपए इंटरेस्ट के पैसे आको हैं, कहां लगाना? ये कोसे सूद के पैसे आकर हैं, कहां लगाना, कहां खर्चा करना? बाज जने बोलती दोड्डी बनाए जा कते, बाज लोग बोलती रास्ते बनाए जा कते, बाज लोग बोलती लाइट की बिल्ला बंधे जा कते। सूद के पैसे आकर है मेरे बैंक में, कहां देना? बाज लोग बोलती लड़कियों को जहेज दिया जा कते। अल्लाह अकबर। ये कते 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 खर्चा करने की बात बाद में करो, पहले यह सवाल करो सूद आने की जगह तुम्हें पैसा सेव रख सकती क्या नहीं रख सकती, यह सवाल करो पहले। बैंक एक जरूरत की चीज, वो बैंक में 2 किस्म के अकाउंट रहती हैं तुम्हारे, एक करेंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में पैसा रखे तो तुम्हारा अमाउंट बड्डी खाता भी, बड्डी देता भी उन्हें। 1 लाख रुपए एक दिन के वास्ते भी तुम्हें रखे, उन्हें 1 लाख रुपए बड्डी को देता, बड्डी से कमाता, अपे भी खाता, तुमना इतने का तो महीने को की साल को की डालता। करेंट अकाउंट बनाओ ना, करेंट अकाउंट को 1 रुपया भी बड्डी नहीं आता। करेंट अकाउंट किसे बोलती? बिजनेस अकाउंट। नहीं मुल साहब हमारा बिजनेस है, सेविंग ही अकाउंट बनाने को रखना पड़ता। ठीक है सेविंग अकाउंट बनाओ, लेकिन अमाउंट कहीं रख रही जी, उसमें अमाउंट कहीं रख रही है, बैतुल माल में रखो ना अमानतदारी से, नहीं का तो जीरो अकाउंट बना कर रखो। आता ना उसमें पैसा इंटरेस्ट का, हराम का, वो काम भी खर्चा नहीं कर सकते, याद रखो। ना रस्तों पे, ना लेटरिन गुंडी पे, ना किसी बिजली के बिल पे, ना लड़की के जहेज पे, कहीं भी खर्चा नहीं कर सकते। जायज नहीं जी तुम्हारे लिए वो सूद, हरगिज हरगिज जायज नहीं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये हुआ सूद का मामला। अब आइए उसके बाद, बाज लोग हैं इलेक्शन का जमाना आंदे, अच्छे का ईमान का शेरवा उतर जाता नीचे, बड़े बड़े झुब्बे वाले का, दाढ़ी वाले का, अपने आप को हजरतुल अल्लाह बोलने वाले का शेरवा उतर जाता इलेक्शन के जमाने में। इलेक्शन जब भी होती, बार बार इलेक्शन होते रहती, वो काउंसलर इलेक्शन कहते, ये एमएलए इलेक्शन कहते, वो पीएम का कहते, या सीएम का कहते, देखते देखते आते रहती इलेक्शन। इलेक्शन में खड़े हुए 2 बड़े बड़े पार्टियां हमारे सामने, एक हाथ वाला एक फूल वाला। अभी इंडिपेंडेंट बल्ला की रहती, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना मैं हाथ वाला हूं ना फूल वाला हूं, एक मिसाल देने को ऐसे बोल रहा हूं मैं। कौन सा भी इलेक्शन रंदे, काउंसलर रंदे, एमएलए रंदे, पीएम रंदे, सीएम, कौन सा भी रंदे, अब 2 पार्टियां खड़े रहती उसमें, बड़े बड़े खतरनाक। अब इधर पार्टी वाला क्या बोलता, भाई मैं खड़ी हूं, मिंजत डालना, तो बराबर डालना, हो दे भाई तुझे डालता हूं, कहां डालना? मेरे बेटे तुझे खड्डे में डालता हूं, देख कर तेने दिल में कर लेता, मिंजत डालना भाई,
अच्छी बात भाई, एक वोट को एक नोट देता हूं मैं। कौन सी बड़ी नोट नम्मे, ये मामूली खाकी नोट 500 की नोट। एक वोट को एक नोट देता हूं, 500 रुपए देता हूं। मिंजत डालना देखता था, कौन बोलता? हाथ वाला बोलता। अब इन्हें इधर अपोजिट पार्टी वाले को मालूम होता, ये बेटा एक नोट दे रहा करते, 500 दे रहा करते। इन्हें क्या करता? वोट मिंजत डालना, 2 नोट दे तू, 1000 दे तू, तुम ना मिंजत डालना। इन्हें क्या करता? हजरत शरीफ दाढ़ी रखले को मुस्कुराने वाला, हजरत तुम्हें डरो ना, हजरत हमें है तक तुम्हें जित दी सो, तुम्हें अच्छा है कर दी सो, तुम्हारी जय सामने जय, पीछे से मरेंगे मेरा बेटा। अच्छा इधर क्या करता? लाओ मेरे घर में 6 वोटा, मैं मेरी जोरू, मेरे 4 बच्चे, पूरे 18 साल के ऊपर के वोटा डालने वाले, 6 वोटा। अब तू एक वोट के 500 दे तू क्या ना, 6 वोटा के 3000 ला भाई, तुझे डालने का ला भाई। मैं इधर लेता, इधर की जब कर्म कर लेता, इधर जाता फूल वाले गने भाई, एक वोट के 1000 दे तू क्या ना, 2 नोटा, 6 वोटा के 6000 ला, तुझे में डालने का 6000 रुपए लेता, इधर की जॉब गरम कर लेता। एक महल्ले में इधर भी खा रहा, इधर भी खा रहा। अब मैं पूछता हूं वोट किसे देता? इन्हें एकले कुछ ना देंगा। ऐसा तो नहीं कि एक वोट में से आधा टुकड़े टुकड़े करके, आधा इसे आधा उसे, ऐसा तो नहीं दे सकता ना। एक को वोट देता, एक को खड्डे में डालता, एक को हक से वोट देता, वो रिश्वत खाने के बाद। अल्लाह अकबर। अजी मैं बोलता हूं सो बातों को तुमने हंसा आता रहेगा। कई कतो मैं दक्कनी उर्दू में ज्यादा बातें करता हूं, बल्लारी के डब्बा उर्दू में ज्यादा बोलता हूं, शायद आपको हंसा आता रहेगा। ये हमारे दरमियान में चल रहा सो रियल पिक्चर, ये हमारे दरमियान में चल रही सो हर इलेक्शन के जमाने का रियल पिक्चर। ये तुम्हारे जमीर के अंदर झांक को देख लो, क्या कर रही तुम्हें, कौन सा पैसा खा रही तुम्हें। अल्लाह अकबर। मेरे नबी का फरमान है, अल्लाह अकबर, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत खाने वाला, रिश्वत खिलाने वाला, दोनों अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। अल्लाह अकबर। ये पैसा कई का पैसा चाहिए, रिश्वत का पैसा चाहिए, हराम का पैसा चाहिए। अल्लाह अकबर। एक नोट के वास्ते वोट बेच लिए तुम्हें, एक नोट के वास्ते। मैं सवाल करता हूं कितनी देर रहती वो नोट तुम्हारी जेब में? 1 हफ्ता रहती, 1 महीना रहती, 1 साल रहती? क्या तुमने बिल्डिंग खड़ा करती वो नोट? अल्लाह अकबर। तुम्हें साल भर कमा कमा को 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो जमा करे थे ना, हलाल पैसे की पूंजी, तुम्हारी घंटी, वो पूरे हलाल पैसे की पूंजी की बरकत को सत्यानाश करने के लिए काफी है वो हराम की 1 नोट। वो हराम पैसे की 1 नोट तुम्हारी जिंदगी के कमाई की पूंजी को बर्बाद करने के लिए काफी है। अल्लाह के वास्ते इलेक्शन के जमाने में रिश्वत नको खाओ। रिश्वत है ये, कौन की मुर्गी का गोश्त भेजता घर को, कौन की बड़े का गोश्त भेजता, कौन की सेबांदे को भेजता, फ्रूटाम भेजता, दिलाने वाला हासिरान दिलाता, जानी मासान दिलाता, वो नाक में की नथी कहते, कान में के बालियां कहते, छोटे छोटे आइटमा वो देता वट माइल करने। मैं एक गिफ्ट दे रहा हूं, डालो इलेक्शन से पहले देता, इलेक्शन होने के बाद सुन को भी देखता नहीं। ये लेना जायज नहीं जी। मामूली चीजों के वास्ते तुम्हारा ईमान का सौदा करती क्या? अंदर तुम्हारी जमीर मर गई क्या? अंदर एक ईमान नाम की चीज रहती, अंदर जमीर उन्हें अंदर से पुकार को बोलते रहे, नालायक फलां का पैसा खा को धोखा दिया ना रे उसे, तुझे शर्म आती नहीं करे, उसके पैसे नाहक निगला ना रे तू। अंदर से जमीर आवाज देती, वो जमीर भी मर गई क्या हमारे अंदर से? अल्लाह के वास्ते अपने जमीर को जिंदा रखो, हराम पैसे को हाथ लगाओ न को। ये नाजायज है, ये हराम है ये। अच्छा इलेक्शन का हुआ, अब और आओ हमारे दरमियान हराम कारियां और कितने हैं, और कौन कौन से हैं? आजकल के हर धंधे में कमीशन आ गए, कमीशन। अल्लाह अकबर। हराम है ये। कैसा कमीशन? इन्हें प्लम्बर रहंदे, कारपेंटर रहंदे, पेंटर रहंदे, इन्हें बिल्डिंग का बड़ा मेस्त्री रहंदे, इंजीनियर रहंदे। अब बोलता लहुआ को से दुकान भी ले उनको करेक्ट उस दुकान को जाओ, मेरे पहचान वाला होने, मेरा नाम बोलो। सब जगह 70 पर 8 रुपए केजी बिक रहा हुआ। कामाधेनु MTS, मेरा नाम बोलो, 60 पर 6 रुपए से दिला तुम ना। 1 केजी के पीछे 2 रुपए का, तो 10 टन के पीछे हजारों के रुपए बचे। मेरा नाम बोलो जी तुम्हें जाको। हाँ
कौन से दुकान को जाना नहीं तुम्हें, करेक्ट वो दुकान को जाना। पेंट लेना चाहती हूं तुम्हें, घर का पेंट, कहां भी जाओ ना को करेक्ट वो दुकान को जाओ। मैं बोला कि मेरा नाम बोलो, बराबर रिजनेबल रेट से डालता उन्हें। अब इन्हें जाता, हजरत जाती, पीछे से फोन आता, किसे, वो दुकान वाले, भेज रू देख रहे, एक बकरे भेज रू देख, बराबर चमड़ी छील ले उसकी, बराबर दाल को छील ले उसे, मेरा कमीशन कितना निकालना निकाल ले। एक बिल्डिंग का 3 लाख का माल खरीदने आ रहा उन्हें, 10% 20% मेरा निकालने को देना देख तो। अब उन्हें आने के बाद बोलता, ये डब्बा 180 रुपए का, हमें दूसरे को 160 देती, वो मिस्त्री भेजागा तो 150 रुपए में दे रहा हूं। हालांकि वत्ता नहीं रहता, वो डब्बा खाली 120 रुपए का रहता। 20 रुपए बेचने का, 30 रुपए उसका कमीशन दाल को, उसे कहां गाना खड्डे में गाड़ को ले ले छोड़ता इसका ने। इन्हें बकरा बन को क्या कम मिलाना मिंजेगा ले ले छोड़ता। कमीशन, हर माल में कमीशन। उधर इलेक्ट्रिकल माल खरीदने जाओ कमीशन, इधर पेंटिंग माल ले कमीशन, प्लम्बिंग का आइटम लेने जाओ कमीशन, उधर क्या तो भी गाड़ी बुक करने जाओ कमीशन। अस्तगफिरुल्लाह, कहां है जी ये कमीशन? कौन बोला जी तुम ना खाने? कहीं को हलाल तरीके से हरकत कर रही ना, अल्लाह उसमें बरकत दे रहा, तो बस नहीं क्या? अल्लाह कुरान में बोलता, सूरह निसा में फरमाता, 138 नंबर आयत में मेरा रब का ऐलान है ये, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमान वालो, आपस में बातिल तरीके से एक दूसरे का मुंह मार के ना किसी का माल ना खाया करो। अरे बातिल तरीके से खा रही ना जी माल तुम्हें, उसका मुंह मार को खा रही ना जी तुम्हें, उसके पीठ के पीछे धोखा दे को छिल रही ना जी तुम्हें। शर्म आती नहीं हमना, शर्म आती नहीं हमना। 1 रुपया खाए तो 40 दिन की नमाज कबूल नहीं ना जी, शर्म आती नहीं हमना। हाँ, कमीशन से बचो, कमीशन से बचो, अल्लाह के वास्ते बचो, हराम है ये कमीशन। अच्छा, और क्या है? और बैंक से बड्डी लिए तो 3% इंटरेस्ट, 3% इंटरेस्ट भरना, सूद देना उन्हें। अब वो नौवा निकल गया, मुत्तू फाइनेंस में गोल्ड लोन रखो लेना कहते। घर में सुन्ना चुपके पड़ा, वो सुन्ना लेक जा को बैंक में रखे तो ओनली 1% इंटरेस्ट कहते। भाई 3% 4% कौन भरने बढ़ता, 3% 4% बड्डी कौन भरने बढ़ता। अब हजरत की बड्डी बनते 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 जिंदगी पूरी चड्डी ढीली हो जाती, लेकिन बड्डी खत्म नहीं होती। इसकी बड्डी फिरती नहीं, हरगिज़ हरगिज़ फिरती नहीं। क्यों? अल्लाह सूद की जिंदगी में बरकत रख्याच नहीं, सूदकारी की जिंदगी, हरामखोरी की जिंदगी में बरकत रख्याच नहीं। तेरी हालत ढीली हो जाएंगी, लेकिन जिंदगी से कभी तू परेशानियों से छुटकारा नहीं हासिल करता। क्या करना? नहीं कहते गोल्ड बैंक में लोन रखो, गिरवी रखो, इन्हें पैसा लिया तो ओनली 1% भरने का कहते। अब ले लेता मुत्तू फाइनेंस में गोल्ड लोन। आहा हा, कैसा जी ये कैसा ये? अब इसकी मिसाल मैं देता हूं, सुनो। 1 ग्राम पैखाना खाए तो भी पैखाना च, 1 किलो पैखाना खाए तो भी पैखाना च, 1% इंटरेस्ट भरे तो भी बड्डी च, 3 में 4% भरे तो भी बड्डी च। तुम्हें क्या समझी? ओनली 1% कहते मौली साहब, जायज नहीं जी, हरगिज हरगिज जायज नहीं जी। तुम ना ये कौन जी बोले? अल्लाह अकबर। अल्लाह के वास्ते ऐसे गोल्ड लोन के धंधे से बचो। और क्या है हमारे अंदर बीमारी? चिट्टियां डालने की बीमारी। अजी तुम्हारी बेटी की शादी कब रखी तुम्हें? दिसंबर में रखी मौली साहब, कई को नवंबर में, कई रखे नहीं। नवंबर में चिट्ठी उठती मौली साहब। चिट्ठी कौन सी चिट्ठी? एक हलाल की चिट्ठी, एक हराम की चिट्ठी। चिट्ठी में भी 2 किस्म की चिट्ठियां हैं, अच्छी तरह सुन लो, समझ लो। अपनी जिंदगी को हलाल खोर बनाओ, हराम खोरी से बचाओ। हलाल चिट्ठी को सी, हराम चिट्ठी को सी। हलाल चिट्ठी बोले तो 10 सदमिया मिल को 10-10 हजार रुपए डालती, हर महीना 1 लाख रुपए जमा होती, खुरा अंदाजी में 10 नामा डालती, एक नाम उठाती, जिसका नाम निकलता वो 1 लाख रुपए उसे दे डालती। अब 10 आदमी भी 10 महीने तक बराबर 10-10 हजार भर लेके जाना। 1 रुपया ज्यादा भी नहीं, 1 रुपया कम भी नहीं, किसी का फायदा भी नहीं, किसी का नुकसान भी नहीं। ये जायज चिट्ठी, इसे खुरा अंदाजी से एक दूसरे की मदद करना बोलती, ये जायज चिट्ठी। अब नाजायज चिट्ठी कौन सी? नाजायज चिट्ठी 11 चिट्ठियां डालना, 10 चिट्ठी के पैसे उठाना।
एक चिट्ठी कलेक्शन करने वाला निकाल लेता, ये नाजायज चिट्ठी, हराम की चिट्ठी, इसमें जाना नहीं, इसमें पढ़ना नहीं। और क्या है हमारे दरमियान? लाइफ इंश्योरेंस कराने की बीमारी। लाइफ इंश्योरेंस, ये गवर्नमेंट से वो इंश्योरेंस कराने का है, कहते गाड़ी का इंश्योरेंस तुम्हारे लिए जायज है, गाड़ी का इंश्योरेंस कराए बिना गाड़ी नहीं चला सकते, ये हिंदुस्तान है, ये दारुल हरब है, यहां चंद मजबूरियां हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराना ही कराना है आपको। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए जायज नहीं, हराम है, ये मुकम्मल हराम। नहीं कहते मौल साहब मैं मरिया तो 21 एक बार मेरी जोरू को 40 लाख रुपए गवर्नमेंट देता, कहते वो भी मैं अच्छा मरिया था, मैं एक्सीडेंट होकर मरिया था, इसीलिए मैं हमेशा ये दुआ कर तू साथ मेरा बेटा मुझे ठोक को चले आन देगा। तो मेरे भाइयों, लाइफ इंश्योरेंस कराना हराम है, लाइफ इंश्योरेंस कराना हराम है। अल्लाह के वास्ते इंश्योरेंस से बचो, बाहर निकलो, अगर कौन तो भी कराए रहे तो उन्होंने बाहर निकल जाओ, इसलिए कि ये जायज नहीं, हरगिज हरगिज तुम्हारे लिए जायज नहीं। और इसके अलावा लड़कियों का जहेज खाना, लड़कियों को जहेज के नाम पर उनका खून चूसना, बार बार पैसा का मुतालबा करना। अरे अल्लाह तुमने मर्दाना बनाया, मुंह पर मुच्छा रखने वाला बनाया, हाथ में अर्रिजालु खव्वामून, ताकत वाला अल्लाह तुमने बनाया, कैसे नामर्द बंगड़ा पहनने वाले बन को जहेज मांगती ना जी तुम्हें। ऐसे जहेज लेने वाले को यूट्यूब पर मेरी नजर में भुक्के फकीरा रे बावा खकार को थू थू गो, तो ऐसे फकीराना को बनो, अल्लाह के वास्ते खुददारी से कमा को खाने वाला बनो। क्यों? ये जहेज के नाम पर लड़की वालों से माल उसूल करना, नाहक खींचना, ये बातिल है, ये हराम का माल है, ये जायज नहीं है तुम्हारे लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। इशारा, अक्लमंद को इशारा काफी है। एक अक्लमंद को पूरा खाना गल्या नहीं गल्या, 50 सेर का खाना चढ़े, उसमें से खाना गल्या नहीं गल्या, वो देखने के वास्ते सिर्फ 2 दाने दबा के देखे तो अक्लमंद मालूम कर लेता 50 सेर का खाना कितने लेवल को गल को है, अभी कितना आदम चढ़ाना, कितना दम देना। लेकिन बेवकूफ क्या करता, ये 2 दाने तो गल गई, बाकी का दाना गल्या नहीं गल्या, पूरे खाने दबा ले एक बैठता नहीं। ये जितने बातें आपको बताया हूं इशारे के तौर पर, आपके इबरत के लिए काफी है। जिंदगी में अपने आप को हलाल खोर बनाइए, हराम खोरी से बचाइए, क्योंकि मेरे अल्लाह के पास सिर्फ और सिर्फ हलाल खोरों के लिए जन्नत है, हराम खोरों के लिए जन्नत नहीं। आप अगर जन्नत में जाना चाहते तो हलाल कमाकर अपने आप को हलाल खोर बनाओ। जहन्नम में जाना चाहती कैसा तो भी खाओ, क्यों तो भी लुंड हो जाओ, अल्लाह पूछता नहीं, डायरेक्ट जाबा जहन्नम में गता। अल्लाह की जन्नत के तलबगार हैं, लुक़्मे को हलाल बनाना, आमाल को सही बनाना, तब भी तुम्हारा अमल कबूल होगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मैं अपनी बात खत्म करते हुए सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं, जिस अल्लाह ने कक्केरी की सरजमीन पर पहली बार आकर